हेलो। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। किस सर आ रही है। यस सर। ठीक है। सो बेसिकली आप की प्रिपरेशन इस फेज में क्या होनी चाहिए उस पे विल ब्रीफ डिस्कशन। उसके बाद अपनी क्यूरी बता सकते हो, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ पहले एक कॉमन स्ट्रेटेजी। ठीक है। सो जो इसमें जुड़े हुए हैं वो ज़्यादातर या तो टेस्ट सीरीज में या फिर क्रैश कोर्स में, राइट। तो आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि होपफुली सबने एक बार सिलेबस कर रखा होगा, मतलब जो जितना करना था। लेट्स से कुछ पोर्शन छूटा हुआ तो ठीक है, बट जो अभी तक किया है उसके हिसाब से आई विल डिस्कस कि आपने कुछ लेट्स से व्हाट एवर टॉपिक यू हैव डन, यू हैव मेड सम ब्रीफ नोट्स ऑफ दैट, short notes basically. So what process you will follow in this period of 3 months basically is this, that you will refer to short notes of, let's say the topic number one, we have 13 topics, right? Let's say topic number one is OD. So you will refer that short note for that topic. Post that, you will shift to uh, जो क्रैश कोर्स में दे विल शिफ्ट टू क्रैश कोर्स, राइट। उससे पहले दे विल रेफर दी शॉर्ट नोट्स जब भी क्रैश कोर्स के लिए आएंगे, और जो क्रैश कोर्स में नहीं है इस स्टेप के बाद दे विल शिफ्ट टू द पीवाईक्यूज। यू शुड कंप्लीट पीवाईक्यूज फ्रॉम 2010 टू टिल लास्ट ईयर, उसके पीवाईक्यू विल सोल्व। तो दिस विल बी योर स्टेप वन, राइट। इसके बाद आप क्या करोगे कि टेस्ट सीरीज लिखोगे, राइट, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ऑलमोस्ट सभी है इसमें। सो यू विल राइट द टेस्ट सीरीज या कोई भी टेस्ट पेपर यू विल राइट इन द 3 आवर टाइम पीरियड। उसके बाद द क्वेश्चंस वेयर यू आर हैविंग इश्यूज, लेट्स से कि इन पीवाईक्यू आल्सो यू हैविंग सर्टेन क्वेश्चंस यू हैव डिफिकल्टी टू grasp that, or in test series also you are having issue with certain questions, then for those particular questions you refer to your extended class notes. uh, जो भी आपके extended class notes है, या in case you follow the standard book then it refer to standard books only for those questions where you have problem in PYQs and your test. अच्छा, here also there can be some random question in let's say test series, because certain questions are random in UPSC as well, but we cannot call them PYQ themes. PYQ themes are those where the questions are more frequent. Like in OD, we can say that various methods to solve second order differential equation of variable coefficient are the PYQ themes. Solving differential equation by the use of Laplace is a PYQ theme. Clothes form is a PYQ theme. Question based on integrating factors are PYQ theme. Orthogonal trajectory based questions are PYQ theme. But let's say there is some question based on one scan concept, then we cannot say that's a PYQ. Of course, that is part of the syllabus, but that is one of question of that sort. So if basically certain question of that sort you encounter in test series, then just solve that question and that's enough. For that, you don't have to refer your standard book or your extended notes, right? So this strategy you will follow, and this thing you follow for all the 13 topics, and try to be basically have the schedule, try to follow the schedule of test series. If not, if you are running one test behind, then that is also okay. Just make your own schedule because the flexibility is there in test series. So make your schedule. If you are not able to follow the test series schedule, I would suggest you follow that. But if you are not able to follow that, then make your schedule and stick to that. And try that from today to 30 to 35 days or at max 40 days, you complete the math syllabus. And then after that, you just practice full length test and refer your short notes in regular interval. Let's say 10 to 15 days interval, you refer those. So this should be your strategy. Uh, तो मेरी तरफ से ये बोलना था। अब आप लोगों के जो भी कुछ डाउट है वो आप पूछ सकते हो। सर मेरा एक डाउट है। सर हाँ। सर मेरा आई नोट्स कंप्लीट हो गया है और ठीक ठाक से कमांड है उसमें। लास्ट ईयर आई गेव मेंस, मेरे 280 मार्क्स आए थे सर। अब मेरे को इसको थोड़ा सा 30-40 मार्क्स और इम्प्रूव करना है, तो मेरा फोकस कहाँ होना चाहिए?
यार ये जो मैंने आपको बताया ना वो चीज फॉलो करो। अच्छा, इसमें एक चीज जो मैंने ऐड नहीं की कि जो है आपने सब कुछ कर लिया फिर भी मार्क्स क्यों नहीं आते। द रीजन इज एरर्स, राइट। सो आपको एरर भी मिनिमाइज करनी है, तो उसके लिए आप एक अलग से सेपरेट सीट रखो, राइट। तो उस सेपरेट सीट में यू पुट द एरर्स विच यू कमिट। जनरली हर इंडिविजुअल की अपनी अलग एरर्स होती है। लेट्स से कि समवन इज मेकिंग एरर इन प्लस माइनस साइन इन इंटीग्रेशन, someone is in some other calculations and so on. So you basically mention those errors in your short notes. And let's say ki, you give the past test and you made some errors. You those errors should go in your this should be a separate sheet. Then refer this sheet before the next test. And then the next state, if you commit some new errors, then add in this. And that through this process, you will be able to eliminate a great deal of errors actually, right? Plus practice in time on manner, you try to practice. Try that you don't escape steps, because when we escape steps, we commit errors. Try that if there is some avenue to re-verify your answer without consuming much time, then resort to that. So these are the certain aspects, but at the end, it's the practice which will matter more. So try ki jo at least 15 test series ke wo to aap attempt karo. Even I will share the previous test series as well. So try to attempt that as well if time permits, right? So ये होना चाहिए। और PYQ पे you should have a thorough command. In fact, the last 5 days before the mains examination, last 5 days means between the GS and maths. In those, you just refer your PYQ and these short notes. So this process you follow. So if you've done, like I think I asked the question, if you covered the content, just focus on the eliminating mistakes, because I have seen many who basically have good command over content but make errors there, so then you won't get marks. ठीक है। सो और कोई टॉपिक आपका वीक, लेट से आपने हर कुछ कर लिया है और कोई टॉपिक आपका वीक है एंड यू फील कि यू कैन हैव कमांड ओवर दैट टॉपिक एज वेल, तो आप उसको भी करो। ठीक है ना? So I have one doubt. हाँ। So my doubt is, since the optional, max options syllabus and the that content that you have to study is little bit bulky, should we focus on formulas or anything like that, which is having a similar trend with the, like by analyzing the PYQs, whichever topic is more significant? If we are just या revising those particular formulas and those kind of things, it will be far much better, right? Because not if I not formulas. Yeah, I got your question. Not formulas actually. The way I initially said this only, that you just refer your short notes. Of course formulas will be there. Your short notes you refer, then you solve the PYQs and the test series, या जो भी क्रैश कोर्स में अगर हो तो उसके जो क्वेश्चंस है, तो दिस प्रोसेस यू फॉलो। एंड द क्वेश्चंस वेयर यू हैव इश्यू, देन रेफर टू द एक्सटेंडेड नोट्स, जो क्लास नोट्स है, तो दैट प्रोसेस यू फॉलो। okay, sir. मतलब ऐसा मत करो कि आप नोट्स उठा लिए पूरे, वो लगे हुए हैं उसमें, वो टेस्ट भी नहीं हो रहा टाइम पे, तो वो बिकॉज अभी टाइम कम है ना, वी हैव वेरी लेस टाइम, राइट। So this process you follow, and in this way you will be able to cover the syllabus as well. Okay. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जीएस एंड मैथ्स के बीच में मुझे टाइम मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रही है। फॉर एग्जांपल अभी मैं मतलब राइट आफ्टर प्रीलिम्स में 50-50% टाइम दे रहा हूँ, 6 आवर्स मैथ्स एंड 6 आवर्स जीएस। तो सर मेरा मैथ्स के भी टारगेट छूट जा रहे हैं और जीएस के भी टारगेट छूट जा रहे हैं। एंड सर मतलब अभी तक मैं केवल ओडी ही कंप्लीट कर पाया हूँ, तो मतलब उसमें मुझे अगर आप थोड़ा इंसाइट दे सके। यार मतलब आई वुड से कि अभी जो टाइम है ना, आप ऑप्शनल कोशिश करो कि अभी से 30 से 35 डेज तक आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाए, बिकॉज एनीवे जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आप जीएस पे शिफ्ट हो जाओगे, राइट। तो एटलीस्ट अभी ऑप्शनल आपका कंप्लीट हो जाए, तो अगर आपको अभी 60-70% टाइम भी देना पड़ रहा है ऑप्शनल को, तो दो। उसके साथ जैसे ये एथिक्स वगैरह आप कंप्लीट कर सकते हो, तो ये कोशिश रखो कि एटलीस्ट ऑप्शनल वाली चीजें हो आपकी। जैसे एक वीक ओडी को देना ही तो सही बात नहीं है, ठीक है ना। पर अगर किसी को मतलब, पर ये चीज है कि आप फॉर द सेक ऑफ डूइंग थिंग्स वैसे मत करो। अगर लग रहा है तो फिर लग ही रहा है, बट कोशिश करो कि इतना टाइम नहीं जाए, ठीक है ना। So one more doubt. So you told that we should stick to the notes that we made from like first iteration of study. So the thing is that I have just done value addition to the notes of Mr. Kanishka Kataria. So my notes are actually my own value additions on top of the notes
which was already compiled by Kanisha Katari. Okay, so for me, even that particular notes is literally very comprehensive. Not, I wouldn't say comprehensive, but it covers almost the whole thing. Like it doesn't stress on particular what do you say? Like for example, Yes, in PYQs we have a trend, right? yeah. So my initial, actually, I'm coming back to my initial question. Even that particular notes, should we, prioritize those particular topics which is having more impact by analyzing the PYQs and study accordingly? Yeah, of course, you will be prioritizing the PYQ themes, but when you are referring to short notes, you should go through the other parts as well, right? Matlab, some random question will be there. Like last year, there was a Navy Stow questions, but of course, our priority should be the PYQ themes, then followed by these things. So in short notes, you can obviously refer those part as well. Matlab, one go is necessary for those part as well, right? So Because then again, my question is, how do you revise the whole thing? Like for example, PYQ is fine that because that particular thing is restricted to certain areas, so that thing we can cover on time. But you told that there will be some questions from out of the PYQ theme. So, but to cover those things, we have to have a overall idea of the whole module. Let's say if it is linear algebra or ODE or any other chapter, we need to have an overall idea, right? So how do we plan our revision strategy accordingly? That's my question. no, that's what I'm trying to convey. Na, that let's say कि PYQ theme जो भी है, let's say the heat wave equation is a PYQ theme. So you will solve there 10 to 15 problems or even more, right? But let's say कि there is a question from, let's say Jacobi, right? Which is very rare. So you just solve one question or two question, that's it. Don't give much focus to it, right? Well, of course, you should, if you have done already that part, then you should go through that, but don't consume more time there. Okay, sir. Good. Yeah, that thing you follow. सर एक और मेरा डाउट ये था कि हमें सर IFOS के क्वेश्चन करने चाहिए कि नहीं, बिकॉज आई फील कि वो थोड़े ज़्यादा ट्रिकियर साइड में होते हैं यार and उसमें अभी हर क्वेश्चन में कोई ट्रिक लगती है। नहीं, अभी जो ये 3 मंथ्स का टाइम है ना, उस पर आप CSA फोकस रखो। अगर आपने पहले किए हैं क्वेश्चन फॉरेस्ट के और आपने कहीं मार्क कर रखे हैं कुछ क्वेश्चन तो देख सकते हो, अदरवाइज मेजरली आप CSA फोकस रखो अभी। बट अगर पहले किया आपने तो ऑफकोर्स यू कैन गो थ्रू दोज एज वेल, बट अभी नया नहीं करना है। मतलब अगर पहले किया नहीं है तो अभी नहीं करना है। ठीक है, ओके। बेसिकली ये टाइम है रिवीजन का। मतलब इसमें रिवाइज करना है, या मान लो कोई बहुत ही इजी पोर्शन छोड़ दिया, लेट से किसी ने फ्लूइड डायनेमिक्स का नेम सुन के उसमें से कुछ नहीं किया, तो उसमें जैसे कि स्ट्रीम लाइन है, पाथ लाइन है, इनफैक्ट उसका 80% पार्ट इजी है, तो वो पार्ट जैसे कि आप लेक्चर रेफर कर सकते हो, यूट्यूब पे मैंने डाले हुए हैं, या अगर नोट्स बना लिए आपने पहले कुछ उस टाइप से देखा है तो वो कर सकते हो आप। पाथ लाइन वगैरह होगी वो मतलब ODPD क्वेश्चन है वो, पाथ लाइन्स होगी, स्ट्रीम लाइन होगी, सोर्सिंग भी होगी, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं फ्लूइड वगैरह। तो अगर ऐसा कोई इजी पोर्शन छूटा हुआ ना तो उसको तो कर लो, अदरवाइज जैसे कि मान लो आपने आइलर नहीं किया हुआ फ्लूइड में तो कोई सेंस नहीं है अभी उसको टच करने का, तो वो स्ट्रेटेजी रखोगे। ठीक है। सर शुड वी टच दोस क्वेश्चन इन सेकंड इटरेशन? शिवम आप अपने लेवल पे चेक करो, एक्चुअली वो लोगों को तो आवाज आ रही है, आपकी डिवाइस में कुछ इश्यू है। हाँ क्या बोल रहे हो मनीष? सर शुड वी टच द IFOS क्वेश्चन इन सेकंड इटरेशन? हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपने बाकी कर ली चीजें तो आप देख सकते हो, ठीक है ना। पर अगेन आई वुड से कि आप बिल्कुल पहली बार कर रहे हो तो मत ही करो, क्योंकि उधर थोड़े क्वेश्चन वैसे मिलेंगे बहुत से, मतलब वहाँ रिलेवेंस ऑफ कोर्स है पर उतनी नहीं है कि उधर टाइम कंज्यूम अच्छा खासा होगा, क्योंकि जनरली टफर साइड में होता है फॉरेस्ट का एग्जाम। ठीक है ना। सर मेरा एक डाउट है कि यूपीएससी थीम टॉपिक और नॉन थीम टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करें? कुड यू कम अगेन, क्या बोल रहे हो? सर यूपीएससी थीम टॉपिक और नॉन थीम टॉपिक कैसे मतलब आइडेंटिफाई करें? यार ये तो PYQ से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज मैंने बता भी रखे हैं कहीं साइड, या मैं अगर सिलेबस मैं भी बता देता हूँ आपको। वैसे तो हम PYQ करेंगे ना तो दिखेंगे मतलब बिल्कुल।
पर मैं बता देता हूँ सिलेबस। तो पीडीएफ वगैरह पे आप मतलब मार्क करके आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे। यार मैं बता देता हूँ, अपलोड तो क्या ही करूँगा, अभी 5 मिनट का काम है वो, 1 मिनट मेरे को बस वो, किसी के पास सिलेबस हो तो मेरे को भेज दो या मेरे को ढूंढना पड़ेगा। मैंने शेयर किया हुआ कहीं ना। हाँ, तो बेसिकली इसमें जो है, जैसे मैं जैसे अपना सिलेबस मेंशन है उस हिसाब से बताता हूँ। लीनियर अलजेब्रा में जो है पीवाईक्यू थीम्स हम किसी को बोल सकते हैं, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन, लाइक कि कुछ रिलेशन दे देगा वो मैट्रिक्स और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया, या मैट्रिक्स दिया हुआ है और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पूछ लिया। सो दिस इज वन ऑफ द थीम वेयर क्वेश्चंस आर आस्क्ड। Then in 10 markers, linear dependence, independence of vectors, that question is also asked. To seeing whether some that's given structure is vector space or not, that thing is there. Or then your Kelly-Hamilton theorem. This is a very frequent question on this theorem, like key a power n by the use of Kelly-Hamilton, what is the inverse of matrix? This thing is also very regularly asked. Then eigenvectors based question like these Hermitian matrices, symmetric matrices. So ये वाली चीज है। देन बाकी इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये सब तो आ गया, इनवर्स। हाँ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये भी आप देखोगे तो बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है इस पे, ठीक है ना। तो इस पे भी आप क्वेश्चन कर दो। इसमें क्या वो करता है कि कुछ लेट्स से कि सेट ऑफ इक्वेशन दे देगा, कुछ अननोन उसमें रख देगा, लेट्स से लैम्डा इज अननोन, तो पूछ लेगा कि नो सॉल्यूशन, देन व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ लैम्डा, इफ infinitely many solutions, then what will be the range of lambda, and so on. So that question is also PYQ theme. Then this rank nullity theorem, this is also important. Verification question based on the verification of rank nullity theorem are also asked. So this is there. Then yeah, this is what it this part is there. Then in calculus, differentiability based questions, like multiple variables, uh, function is continuous, differentiable, these questions are sometimes asked, right? Partial derivatives. So like let's say function is root of mod xy, then what will be partial derivative 0, 0, is it differentiable? So that is one thing. Maximum minimum questions are being asked nowadays in calculus. Even the one variable maximum minimum question are asked. Then this Lagrange's multiplier, this is a very regular question, and it counts of 15 or 20 marks. So that is there. From the last 2 years, curve tracing is also being asked, right? At 1 minute. ठीक है, so in calculus, this improper integrals, you will find a regular question on improper integral. Then comes your yeah, curve tracing. Last 2 year 15-20 marks questions are being asked on the same pattern actually. So this is also now PYQ theme, we can say. Then Riemann integral, yeah, Riemann integral based, there are 4 theorems, you should be very thorough on those. So Riemann integral based questions are very frequent. तो इस टाइप से सबके ये अपन देख सकते हैं। ज्योमेट्री हो गया, ज्योमेट्री में प्लेन और स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेज डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस जो होते हैं स्क्यू लाइंस पे, वो भी बहुत रेगुलर है। देन कैनोनिकल फॉर्म्स के क्वेश्चन आते हैं, इवन लास्ट ईयर इट वाज आस्क्ड एक वन क्वेश्चन फ्रॉम बेसिकली कॉनिकोइड। सो
that is not that sort of PYQ theme, but one question is there from conicoid, so that part मतलब वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है करने में, तो उसमें एक ऐसा कुछ अच्छा हाँ, एक चीज है कि जनरली परपेंडिकुलर जनरेटर्स बेस्ट थीम के क्वेश्चन ठीक ठाक दिखते हैं ज्योमेट्री में, सो दैट थिंग इज देयर। इन ओडी मैंने अभी बताया था आपको शुरू में, वो सब PYQ थीम्स है। बाकी जो कोचआइलर वगैरह भी है उसमें, अगर आप ऐड करना चाहो। डायनामिक्स स्टैटिक्स में जो लास्ट के 4 टॉपिक्स एक्चुअली, कैटनरी हो गया आपका, वर्चुअल वर्क हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ वर्चुअल वर्क हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, सेंट्रल ऑर्बिट, देन योर central orbit, Kepler is also asked but rarely, then constant motion. These are the PYQ themes, SHM, from statics and dynamics. In vector, the verification of Gauss, Stokes, and this green based on the questions. Last year this question was there. In fact, every year you will find one of these theorem, that by the use of this theorem or verify this theorem with the help of this question, ऐसा। तो ये this is also very frequent question and 15 or 20 marks will be there. So yeah, then vector identities based question is also very frequent. Generally in compulsory part it will come. तो ये है vector में, ये vector is a very easy topic and you will see that 50 to 60 marks are regularly asked. So ये है। हाँ, आपका प्रोसेस ये होना चाहिए कि easy topics पे you should have very good command, तो एटलीस्ट वो गलत ना हो, राइट। सो ये है। देन सेकंड पेपर में अलजेब्रा है, तो इसमें जनरली होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म के क्वेश्चंस बहुत रेगुलर है, तो वो आप अच्छे से कर लो। और जैसे रिंग वाले पार्ट में यू विल सी दैट देयर आर टू थ्योरम्स, R oblique I, if I is your let's say prime ideal, then R by I will be integral domain, and ऐसे ही एक है R by I, if I is maximum then R by I will be filled. So this theorem is, these two theorems are very important. In fact, last year there was a question, last year was also there a question based on this plus irreducible criteria. So इसमें ये है Lagrange's theorem based question in group theory, that cyclic group. So these are some of the PYQ theme of algebra. रियल में जो है आपके कैलकुलस से मिलते हैं कुछ लाइक Lagrange's multiplier, Riemann integral, improper integral, this part also asked regularly. Then convergence, uniform convergence of series, uniform continuity, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सो ये चीज है। बाकी जो है हाँ ये है, इसमें मैक्सिमम मीनिंग का क्वेश्चन इधर भी आ जाता है, राइट। देन इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, देखो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आइदर यू विल गेट क्वेश्चन फ्रॉम टेलर या लॉरेंट, एक्सपांशन विल बी देयर, और one question from contour integration, like solving definite integration by the use of contours. There are 4 themes. Out of those, first 3 themes are very easy. So those 3 themes are also, even those themes often repeated. जो last की themes है जिसमें random contour होते हैं, that is very rare. I think last time in 2010 that random contour was asked. Otherwise it's regular contour only. So this complex analysis is a very scoring topic because यहाँ पे यही question आते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इन द कंपल्सरी पार्ट सिंगुलरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आर द सिंगुलरिटी बेस्ड क्वेश्चंस, like some property will be given on the residue or singularity basis, and it will be asked that so that this function is polynomial, and sometimes the nature of singularity will be asked. So these are things in this CR equation analytic. इसमें ये होगा कि one of the harmonic function will be given, the other function you will be asked, or the analytic function will be asked. This is also important, and this is helpful in fluid as well, where we find that complex potential. ये complex scoring है। LPP में जो मेंशन है टॉपिक्स आप उनमें से कर सकते हो, उनके हर चीज के वेरी स्मॉल सिलेबस है इसका, तो हर टॉपिक पे आप कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि इसमें तो ऑलमोस्ट सभी से आते रहते हैं। इन PD फॉर्मुलेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 5th क्वेश्चन में एक पार्ट कंपल्सरी जनरली आता है उससे, सो वो आप कर सकते हो। लाइक जनरली जो सॉल्यूशन होते हैं FU V, v = 0, उस sort of function will be given, then formulate the differential equation for that, right? So ये है। then comes your this Lagrange's and Charpit, both these equations are very frequent, right? Then heat and wave equation, almost every year heat and wave equation, this is a very important, heat and wave in one dimension, right? So उस पे आप at least 10 to 15 question you practice. Then Cauchy's characteristic is very rarely asked, अगर आप पूछा जाएगा तो 15 या 20 नंबर का होता है, but not that frequent. Linear partial differential equation of second order with constant coefficient, हाँ ये भी, इसका भी क्वेश्चन बन जाता है। इनफैक्ट OD में भी है ये और इधर भी है।
सो जिसमें वी गेट द CF पार्ट एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल. सो ये आसान है, ये भी कर लिया जाना चाहिए अच्छे से. देन कम्स योर न्यूमेरिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग. ये जो भी टॉपिक है लाइक रूंगे कुत्ता, इन सबके फॉर्मूले यू शुड नो. इसमें से जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है, इन दैट दिस कैनोनिकल फॉर्म्स लाइक सम ऑफ प्रोडक्ट एंड जो देर आर 2 themes last year it was asked, so that is easier part and should be done thoroughly. Then conversion of number system, that is also very easy part. लास्ट ईयर पूछा था, तो ये भी अच्छे से कर लेना चाहिए. बाकी इसमें अभी तो नहीं आ रहे, पर देर वाज ए टाइम आई थिंक 3-4 years बैक जहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ एरर वगैरह पे भी क्वेश्चन आ रहे थे. सो ये है. देन मैकेनिक्स, इन मैकेनिक्स लैग्रांजेस, हैमिल्टन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दीज 3 टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन. बाकी लास्ट ईयर 2 dimension से भी पूछा था उसने, तो दैट इज रेयर. बट ये जो 3 टॉपिक है, लैग्रांजेस, हैमिल्टन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन एंड दीज आर इजी टॉपिक एक्चुअली. अगर आप करोगे लैग्रांज हैमिल्टन तो मैथमेटिक्स बेस्ड है, नॉट मच फिजिक्स देयर. इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जो जैसे मैंने लेक्चर भी करा रखे हैं या नोट्स जो भी आपने रेफर किए हैं, वो जितने भी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं कृष्णा श्री से उठाता सारे क्वेश्चन ये. सो वही चीज़ है, मतलब नोट्स भी वही है मैथोक्रेट के, अगर किसी ने रेफर किए हैं. इसके बाद फ्लूइड की बात आती है, तो फ्लूइड में स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन पे भी कमी आते हैं, पर स्ट्रीमलाइन पे इन ऑल 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम लाइक कार्टेशियन, स्फेरिकल इज आस्क्ड, सिलेंड्रिकल भी पूछ लेगा तो वो भी कर लेना चाहिए अच्छे से. Then comes that if flow is potential kind, then we say curl Q0 होना चाहिए, तो वो भी आपको हर सिस्टम में आना चाहिए. For that you should know the curvilinear coordinate systems. इसके बाद इसमें आप स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन हो गई अपने पास, एंड सोर्सेज एंड सिंक बेस्ड क्वेश्चन, वोर्टेक्स मोशन, ये सब आसान पार्ट है. इसमें अगर किसी ने अभी तक नहीं किया तो आयलर वगैरह छोड़ सकता है, क्योंकि आयलर मतलब पूछने में तो पूछ सकता है, पर देट रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ टाइम ऑन दैट एक्चुअली, एंड प्रॉपर रिवीजन एज वेल, अदरवाइज उसमें एरर होती है. या बर्नौली पे कर सकते हो, आयलर का ही 1 dimension फॉर्म है बर्नौली, तो उससे आई थिंक लास्ट टाइम 2015 या 16 में क्वेश्चन आया है. सो वो चीज़ है. और नेवरी स्टोक भी अभी लास्ट ईयर पूछ लिया था, केस इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट. बाकी दीज आर द पीवाई की थीम्स. ठीक है ना? ठीक है. और Thank you, किसी sir. सर एक डाउट था. हाँ सर नॉर्मल जो शॉर्ट नोट्स हैं जो कनिष्क सर के नोट्स रेफर कर रहे थे, उससे एक चैप्टर करने का लीनियर अलजेब्रा पढ़ने का ट्राई किया, बट उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया जो कि प्रॉब्ली नोट्स को अपने क्लास नोट्स को रेफर करने पे आता. तो फर्स्ट आइटरेशन में अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, तो एटलीस्ट एक बार अपने कोर्स का मतलब क्लास नोट्स रेफर कर लें, या फिर आप कुछ और सजेस्ट करेंगे अभी? नहीं, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो फिर तो करना पड़ेगा. मैंने यही बताया ना कि आप सोल नोट्स रेफर करो और फिर पीवाई वगैरह करो, पर आपको नहीं हो रहे क्वेश्चन तो फिर तो उसको देखना ही पड़ेगा आपको एक्सटेंडेड नोट्स में, राइट? तो वो प्रोसेस है. पर जनरली अगर आपने एक बार किया है तो आई थिंक इतना इश्यू नहीं होना चाहिए, पर अगर ऐसा हो रहा है तो देन तो यू हैव टू गो थ्रू द क्लास नोट्स. ठीक है सर, थैंक यू. और किसी का डाउट? सर मेरा एक डाउट था. हाँ सर ये टेस्ट अच्छा, भाई. गो अहेड. सर टेस्ट सीरीज कब से लिखना शुरू करें, अगर सजेस्ट किए तो आप. यार टेस्ट सीरीज तो कल से स्टार्ट हो रही है, पर मान लो अगर आपका नहीं हुआ उस टाइप पोर्शन तो एटलीस्ट नेक्स्ट संडे से तो आप लिखो, या नेक्स्ट संडे की अगर ऑनलाइन दे रहे हो तो आप तो वीक डेज पे भी लिख सकते हो ना. तो कभी भी मतलब लेट्स से कि मैंने 3 टॉपिक रखे हैं उनमें, पर वो वैसा है कि आप बहुत अच्छे से टाइम देखे करोगे तब टाइम पे होगा, अदरवाइज वो है उस टाइप, क्योंकि टाइम है नहीं उसी टाइप है. तो आप अगर लेट्स से कि 3 टॉपिक्स आर देयर इन द पास्ट टेस्ट, आई थिंक ओडी, लीनियर अलजेब्रा एंड वन मोर टॉपिक इज देयर, कैलकुलस. सो लेट्स से कि आपने ओडी एंड लीनियर अलजेब्रा कर लिया और कैलकुलस इज मतलब नहीं हुआ आपसे, तो एटलीस्ट उसके शॉर्ट नोट देख के पेपर तो दो, क्योंकि वंस द फर्स्ट 5 सेक्शनल टेस्ट आर ओवर, उसके बाद तो आप फुल लेंथ दोगे ना, तो उसके साथ जो बचा हुआ पार्ट है वो कर लेना. पर टेस्ट लिखो आप, और उसमें जो मार्क्स आते हैं ना, यू डोंट गेट अफेक्टेड बाय दोस बिकॉज दीज आर मॉक्स, राइट? I have seen many people who are getting less marks in thesis and doing great there, or vice versa as well. So thesis marks are not the reflection of your basically uh, performance on that day in that paper, right? This is the process to improve your result.
सो यू यूज दैट इन दैट इफेक्ट ओनली, इससे डिमोलाइज नहीं होना है, मार्क्स कम ज्यादा उससे नहीं, आप टेस्ट लिखो पर, राइट? तो इवन इफ 2 topics you have done from the past state, you write it, and that balanced part you cover in the subsequent full length test. So that process you should adopt. ओके सर, वही डाउट था क्योंकि अगर कुछ टॉपिक्स मिस हो गए तो ऐसा। हाँ वो होगा, मिस होगा, मतलब शुरू के 5 सेक्शनल में होगा, हो सकता है कि आपको सेक्शनल के जैसे ही खत्म होती है उसके विदिन 2 week मे बी यू विल बी ऑन द लेवल पे। हाँ ओके सर, थैंक यू सर। सर मेरा डाउट था कि मतलब मैंने प्री के पहले मेरा मॉडर्न अलजेब्रा नहीं हुआ था कवर, तो मैंने प्री जैसे ही ख़त्म हुआ मैंने मॉडर्न शुरू किया, एंड ग्रुप्स लाइक ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है लेक्चर्स, तो मैं रिंग्स पे कंटिन्यू करूँ? क्योंकि जैसे आपने लेक्चर्स में भी बोला है कि ग्रुप्स ईजी है उसको मत छोड़ो, बट रिंग्स थोड़ा टफ है, तो लाइक उसको कवर करूँ या पहले रिवाइज कर लूँ जो पहले के टॉपिक्स हैं? नहीं, आप एक्चुअली पहले के टॉपिक्स के रिवीजन पे फोकस करो, राइट? मतलब आप रिंग वाले पार्ट में इतना कर सकते हो कि शुरू की चीजें देख ली कि रिंग, इंटीग्रल डोमेन वगैरह क्या चीज है। अगर मान लो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन, आजकल तो नहीं आ रहे वैसे क्वेश्चन, बट देयर वाज ए टाइम लाइक 14 आई थिंक 2014-15, तो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन वर देयर, तो पता नहीं आ जाए वैसे भी कि स्ट्रक्चर दे दे एंड पूछ ले कि वेदर दिस इज ए रिंग और नॉट, सो वैसे क्वेश्चन तो मिस नहीं होने चाहिए हमारे, राइट? तो आप रिंग में ऐसा करो, अगर मतलब मेन फोकस तो आपका रिवीजन पे होना चाहिए जो पार्ट आपने कर रखे हैं, क्योंकि मॉडर्न आप कर लोगे तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है बहुत, मतलब उसमें प्रैक्टिस से, मतलब मल्टीपल प्रैक्टिस से कॉन्फिडेंस आएगा, राइट? हम्म। तो उससे अच्छा है कि आपने जो कर रखा है उसको रिवाइज कर लो, और जब लेट्स से कि आपके पास जो अगर इतना सा टाइम निकाल पाओ तो आप होमोमॉर्फिज्म वाला पार्ट कर लो रिंग का भी, ओके। मतलब रिंग की बेसिक डेफिनेशंस वगैरह की, अगर स्ट्रक्चर पूछेगा तो व्हाट प्रॉपर्टीज इट शुड सेटिस्फाई, एक्सियोम्स जो रिंग के, followed by that you just complete that isomorphism homeomorphism part, because वहां से क्वेश्चन बहुत रेगुलर है, रिंग्स के भी ना, जैसे रिंग का भी है। अच्छा। एक्चुअली वो ग्रुप वाले होमोमॉर्फिज्म से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है उधर वो, और मोरोवर दिस पार्ट इज लाइक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा, तो इतनी दिक्कत नहीं आती मॉडर्न में होमोमॉर्फिज्म वाले पार्ट में, और वहां से ही क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं, तो ये तो आप कर लो। ठीक है। और सर आपने फ्लूइड्स में बोला कि यूलर्स अगर किसी ने नहीं किया, जैसे मैंने सोर्सेज एंड सिंक्स तक का लेक्चर्स किया हुआ है फ्लूइड्स का, यूलर आपने बोला कि अगर किसी ने नहीं किया है तो वो टफ है, उस पे कमांड आने में टाइम लगेगा, और आपने नेवियर स्टोक बोला कि इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, लास्ट ईयर पूछा था, तो नेवियर स्टोक इजी है वो कवर कर लूं, या वो फ्रीक्वेंट नहीं है तो उसको अभी अवॉइड कर सकती तो हूँ? नेवियर स्टोक में एक फॉर्मूला है, वो आपके माइंड में होना चाहिए, जैसे पिछली बार जो क्वेश्चन आया ना, अगर वैसा क्वेश्चन आता तो जिस उस फॉर्मूले से हो जाता है, उसके बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा। तो जैसे आयलर इक्वेशन का स्टेटमेंट तो पता होना चाहिए, उस पर फिर ज्यादा क्वेश्चन मत करो अगर अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि वो उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए आपको, हम्म। ठीक है ना? तो पर वो जैसे आयलर इक्वेशन होती है आपकी डी क्यू और डी टी इक्वल्स टू एफ एक्सटर्नल माइनस 1/ρ ग्रेडियंट पी, तो नेवियर में बस इसके आगे न्यू लाप्लास ऑपरेटर क्यू वेक्टर प्लस एक टर्म हो रहेगा आपका ड्यू टू कंप्रेसिबिलिटी। जनरली हमारे क्वेश्चंस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के आते हैं तो वो टर्म आएगा नहीं, तो बस ये वाला एक्सप्रेशन जो मैंने नोट्स में भी दिया है वो, तो वो एक्सप्रेशन आप याद कर लो, दैट्स इट। वो अगर जैसे पिछली बार का क्वेश्चन आया वैसे क्वेश्चन आते हैं तो फिर आपको सिर्फ उसको एक्स वाई जेड डिमेंशन में लिख के सोल्व करना है, ओके, That तो will मैं be more- हाँ डिफरेंशियल। बेसिक्स देख लूं कि मतलब पीवाईक्यू के फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, एंड ज्यादा प्रैक्टिस करने की, उस मतलब टाइम ना दूं, पहले रिवाइज कर लूं, यही ना? हाँ पहले ये टाइम आप रिवीजन पे फोकस करो, हम्म। क्योंकि ये मॉडर्न ऐसे टॉपिक तो वैसे भी थोड़े डाइसी, अगर आपने 1-2 बार रिवीजन नहीं किया तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, किसी पे नहीं आता वो, हम्म। तो उससे बेटर है कि आपने जो पोर्शन किए हैं उस रिवीजन में फोकस करो, बिकॉज एट द एंड वेक्टर से भी 50-60 मार्क्स का बनेगा और इधर से भी उतना ही बनेगा। सो इफ यू आर नॉट एबल टू बेसिकली सोल्व द क्वेश्चंस ऑफ वेक्टर बिकॉज द प्रैक्टिस वाज नॉट प्रॉपर और यू मेड सम एरर्स देयर, हम्म। तो देन दैट विल बैकफायर एक्चुअली, क्योंकि ये मतलब कंपटीशन है उसमें और तो करेंगे सही, तो रिवीजन पे फोकस होना चाहिए आपका, और ये जो भी पोर्शन है इसमें जैसे कि सिलेक्टिव रीडिंग यू कैन डू अगर पहले नहीं किया। ओके, ठीक है। सर एक डाउट था। हाँ मार्जिन। हाँ सर, एक्चुअली अभी जैसे शुरुआत में अपन ने स्टार्ट किया है, तो नोट्स पढ़ने के साथ साथ में, माइक्रो नोट्स पढ़ने के साथ में एक मेरे को कंफ्यूजन था कि अभी साथ में मैं पीवाईक्यू सॉल्व करूं या फिर जैसे जो क्वेश्चन बैंक्स वगैरह जो आते हैं
वो अभी साथ साथ में सॉल्व करूँ, या फिर जैसे अगर मैं अभी पीवाईक्यू सॉल्व कर लेता हूँ तो क्वेश्चन बैंक बेसिकली स्टार्ट करने का, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम कब सही रहेगा प्रिपरेशन के 3 महीनों में? नहीं अभी आप ये प्रोसेस करो, जैसे आप पीवाईक्यू शॉर्ट नोट्स रेफर करोगे तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपने मार्क कर रखे होंगे, राइट? हाँ हाँ। तो वो सोल्व कर लो, अभी आप क्वेश्चन बैंक वगैरह के पीछे मत जाओ, वो सोल्व कर लो और उसके बाद ये पीवाईक्यू देख लो। ठीक अच्छा है। ठीक है। और जैसे सर ये क्वेश्चन बैंक वगैरह की इनकी जैसे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ये ऐसे कंपाइलेशन वगैरह आती है मार्केट में, सो इनकी कितनी यूटिलिटी है प्रिपरेशन में? इनकी यूटिलिटी तब है जैसे आपने पीवाईक्यू किया, लेट्स से कि आपने वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पे क्वेश्चन किया और वो सही से नहीं हो रहे आपसे, तो अच्छा। फिर आप ये कर लो। अगर आपके खुद के नोट्स में वैसे क्वेश्चंस है तो आप वो करो, रादर देन कि कोई अननोन क्वेश्चन कर रहे हो, उसका आपको सॉल्यूशन भी नहीं पता, आंसर भी नहीं दिया हुआ है। अगर हम्म। सॉल्यूशन दिया हुआ, अभी वही चीजें करो जिनका आपके पास फाइनल चीजें हैं, ठीक है ना, ताकि ठीक टाइम है। वेस्ट ना हो। हाँ, तो इनफेक्ट आप खुद की चीज़ों पे ज़्यादा रिलाई करो। जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसमें जनरली हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उसमें लिखते हैं अपन जो भी क्वेश्चन थोड़े उस टाइप के ट्रिकियर होते हैं या जो भी पीवाई हम्म की टीम होती है, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आप। पर पीवाई में फिर भी उस टाइप के क्वेश्चन में अटक रहे हो तो आप फिर आपके जो भी क्लास नोट्स है या जो भी बुक आपने रेफर की है, या अगर ये जो हम्म। आप पीडीएफ की बात कर रहे हो अगर वो पहले रेफर किए हैं तो फिर हम्म। वहां से सोल्व करो, ठीक है ना ये। ठीक है। और सर जैसे इनमें मतलब जैसे हर अगर मैं जैसे सॉल्व करता भी हूँ क्वेश्चन बैंक के या फिर इन सब चीजों के, तो सिर्फ उन्हीं पे मेरे को फोकस करना है जिनमें मैं अटक रहा हूँ पीवाईक्यूज में, हर राइट, चीज के पीछे नहीं भागना है। जिसमें ठीक आप है। अटक रहे हो, जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको वो करना है। जैसे ठीक अगर है आई सर। थिंक आप टेस्ट सीरीज में हो, राइट, तो आप ये फॉलो करो। अगर वो क्रैश कोर्स में तो उसको एक्चुअली देखो, क्वेश्चन वही सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, हर जगह वही यस। मिलेंगे आपको, वही स्टैंडर्ड बुक से उठाए हैं क्योंकि यूपीएससी भी वहीं से उठाता है, राइट? तो एट यस द सर। एंड वही सब क्वेश्चन होते हैं। तो पीवाईक्यू करो, बस वो क्या करते हैं, एक्सप्रेशन चेंज हो के आते रहते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के क्वेश्चन बहुत रेगुलर हैं। पिछली बार हम्म। जैसे कैनोनिकल फॉर्म पूछा उसने ज्योमेट्री में, वो भी बहुत फ्रिक्वेंट क्वेश्चन है उस पे भी। तो एट द एंड वही सब है। तो उससे अच्छा है कि आप, अगर आपके पास खुद का कुछ बना हुआ कंपाइलेशन तो वो कर लो, या ठीक जो है भी सर। और कंपाइलेशन है सर उसकी आपको सॉल्यूशन अगर अवेलेबल है तो कर लो। ठीक है सर। और जैसे सर मेरे टॉपर्स वगैरह, उनका सुना था कि जैसे उन्होंने बोला था कि एक अपनी एरर्स की अपन को कॉपी बना के रखनी है, जैसे जो भी अपन एरर्स कर रहे हैं टेस्ट हाँ सीरीज में, और उसके साथ में जैसे कोई भी मतलब अपन को हार्ड क्वेश्चंस लगते हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो उनकी भी एक अलग से कॉपी बना लेनी चाहिए। हाँ, लिख सकते हो, वो आपके शॉर्ट नोट्स में ही डाल सकते हो। ओके। मतलब एरर्स की तो अलग से बनाओ, जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था, एरर्स तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पार्ट। इनफैक्ट 230 भी आ जाएंगे अगर एरर्स करोगे ज्यादा ना, और हाँ मार्क्स सर। उनके डिक्रीज भी हुए हैं। इनफैक्ट पहले टाइम में अच्छा गया, फिर डिक्रीज हो गई क्योंकि एरर्स की, ठीक है ना। तो एरर्स वाला पार्ट तो उसको तो, और वो प्रैक्टिस से आएगा। ऐसे आप लिखो, जैसे 2000 टू 2022 में आयुष गुप्ता, आई थिंक वन वन रैंक में कोई याद नहीं आ रही, आई थिंक 118, मतलब ही इज आईएएस ऑफिसर राइट हो। सो उसके उससे पहले वाले अटेम्प्ट में 235 मार्क्स थे, और हम्म। जो जिस ईयर उसका सिलेक्शन हुआ उसमें उसके 296 थे। और दोनों में डिफरेंस इतना है उसका कि उसने एरर्स पे काम किया, और एरर्स भी ओके। वैसी होती थी, उसकी जगह प्लस की जगह माइनस कर दिया, उसमें हम्म। 60-70 मार्क्स उसके लूज हो जाते। सो वो ओके। चीज़ पे उसने वर्क किया ना, ही गॉट हाईएस्ट मार्क इन पेपर 1 दैट ईयर। तो वो है, और वो टफ वे ही होगा उसका, कोई सिंपल तरीका नहीं है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, एरर्स जो होती है वो लिखोगे, मतलब हम्म। एरर्स जो आप कमिट कर रहे हो ना उनके बारे में कॉन्शियस होना है। जैसे अपन पेपर में लिखेंगे, हमें पता है कि हमने कभी इंटीग्रेशन लेट से किसी का प्लस की जगह माइनस लिखा था, तो जैसे ही वो चीज़ दिखेगी अपने आप माइंड पिक करेगा उसको। तो एटलीस्ट हम वो एरर्स तो रिपीट नहीं करेंगे, कोई नई एरर करेंगे तो मतलब चांसेस तो कम कर रहे हैं हम एरर के। तो वही प्रोसेस फॉलो करना है। ठीक है सर। और एक और डाउट था सर लास्ट कि इस बार अभी 2023 के पेपर में सर जैसे ये स्टैटिक्स वाले पोर्शन से मैकेनिक्स वाले पोर्शन से एक क्वेश्चन आया था सर, जो कि मतलब नॉर्मली आता नहीं था वो, जिसमें स्फीयर रोल कर रहा है और एक और हाँ हाँ स्फीयर उसके अंदर है। सो ये मैंने देखा उसमें सर, ये काफी मतलब शायद ये लास्ट ही क्वेश्चन है कृष्णा सीरीज में, उसका काफी लास्ट बाद में है क्वेश्चन। सो सर हाँ, ये ऐसे लास्ट। क्वेश्चन के पीछे भागना है क्या, क्योंकि नहीं ये नहीं काफी टफ क्वेश्चन है ये ऐसे सॉल्व करने में तो एग्जाम में। नहीं, ये अभी वाला टाइम तो नहीं है इनके पीछे भागने का, वो टाइम निकल गया इनका करने का, ओके। है ना। तो अभी तो आप जो पीवाई की थीम्स है उन पे फोकस करो। अब ये भी उस टाइप से इतना वो नहीं है, पर वो जिसने पहले से प्रैक्टिस नहीं किया उससे नहीं होगा ये। मतलब एक क्वेश्चन पहले आया हुआ है इस टाइप का, पर उसमें क्या था कि इस बार उन्होंने दोनों स्पेयर मूव करा दिए, पिछले में एक फिक्स था। हाँ
एक फिक्स था, यस सर। हाँ तो मतलब पर ये मतलब ऐसे वो भी बहुत आई थिंक 2011 और समथिंग उस टाइप पूछा था उसने, तो मतलब बहुत पहले पूछा था। और अभी इसने ये पूछा है, तो पर इस टाइप के क्वेश्चन के पीछे नहीं भाग सकते आप, क्योंकि इनमें प्रैक्टिस भी चाहिए आपको, इनमें हाँ एरर्स सर। के चांसेस आर हैवी। दिस इज मोर ऑफ 11-12 वाली जो मैकेनिक्स पढ़ते थे हम। हम्म। तो इनके पीछे इतना मत भागो आप, अगर आपने पहले से किए हुए हैं तो तब तो करना बनता है, पर अगर आपने मान लो इस पे ज्यादा क्वेश्चन पहले किए नहीं है तो बस वो PYQ करो एंड मूव ऑन। इससे जस्ट सर मतलब इतने आगे तक तो एक्चुअली नहीं पहुंचा था मैं, मतलब स्फीयर के अंदर भी स्फीयर मूव कर रहा है यहाँ तक तो नहीं, बस ये था कि स्फीयर एक स्टैटिक है, उसके ऊपर एक स्फीयर मूव कर रहा है, उस पोर्शन तक कर रखा है। क्योंकि पिछली बार वहां तक ही पूछा था उसने, तो मतलब लास्ट ईयर ही आया ये, तो इस बार ये भी मतलब ये PYQ कर लो बस, उससे ज्यादा उस पे वो करने की जरूरत नहीं है। मतलब अब तो क्या ठीक ही पूछेगा, दोनों स्पेयर मूव हो गए तो वैसे आएगा कुछ आएगा तो। ठीक है सर। हाँ शिवम, आवाज नहीं आ रही। ये वाला ये मुझे लग रहा है कि सर मैं इसको तो कैसे प्ले कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ? यार आवाज नहीं आ रही आपकी, आप चैट में लिख दो कुछ। शिवम, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। पोस्ट पर मैं कैसे कर सकता हूँ? कुछ समझ में आ रहा। नेवर स्टॉक से भी टफ लग रही है आपको इसको डिसाइफर करना। इसमें चैट में लिख दो आप, मैं पढ़ लूंगा उस पे। हेलो सर, मेरा एक डाउट था। हाँ हाँ। सर जैसे दिस वुड बी माय फर्स्ट अटेम्प्ट, मैंने इससे पहले 2022 जैन से लेके 23 फेब तक में अपना ऑलमोस्ट सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया था, सिर्फ वेक्टर थोड़ा सा छूट गया था। वेक्टर नहीं, सॉरी, डायनेमिक्स थोड़ा सा छूट गया था। अब अभी मतलब सारे कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मैं अपने होम टाउन में ही सेल्फ स्टडी कर रहा था, क्योंकि माय इंजीनियरिंग वाज गोइंग ऑन। अब अभी तो जैसे अब मतलब तो 2-3 सेमेस्टर्स भी साथ में हुए, और फिर जीएस का भी पूरा कोर्स कंप्लीट किया, लेकिन मैथ्स के कोर्स को मैंने रिवाइज नहीं किया। तो सर अभी जैसे मतलब ऐसे उठाता हूँ तो टॉपिक्स थोड़ा सा वो लगता है कि यार ये तो कुछ ध्यान नहीं आ रहा। तो मैं उन टॉपिक्स को मतलब कैसे फोकस करूँ, पहले रिवाइज कर लूँ और स्टैंडर्ड बुक्स अभी फिर परचेज करूँ, या फिर मेरे पास जो ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चंस उसके नोट्स में है उनमें मैं थोड़ा सा फोकस करूँ? यार अभी तो नया तो मतलब आप शायद क्रैश कोर्स में हो ना। हाँ जी सर, मैं क्रैश कोर्स में हूँ। आप ये करो जैसे, अच्छा शिवम का भी यही क्वेश्चन है। शिवम देखो ये मतलब दोनों के लिए मैं मतलब जो क्रैश कोर्स में उनके लिए बताता हूँ, ये जो मैं बोल रहा हूँ कि जी आप सर। जैसे ये 24 से शुरू होगा अपना, तो उस हिसाब से आप चलो, आप क्या करो सिर्फ शॉर्ट नोट्स की चीजें देख के आओ, राइट। मतलब आपने शॉर्ट नोट्स तो बनाए होंगे आपके, राइट। ये सर शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं। हाँ तो आप वो देख के आओ। लेट्स से कि अपना आई थिंक पहला टॉपिक अपना रियल एनालिसिस एंड कैलकुलस का होगा। तो वो मतलब पहला टेस्ट जो टेस्ट सीरीज का वो कल है, पर टेस्ट कोर्स 24 से है। तो अपन रियल कैलकुलस से शुरू करेंगे ताकि सेकंड टेस्ट आप दे पाओ टाइम पे। तो उसमें आप रियल जो भी है इसके शॉर्ट नोट्स आप करके आओ पहले, ठीक है। देख के आओ जैसे सर अपन यस सर। हाँ, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं उस पे जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं PYQ वो सब हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो उसके साथ मूव करते जाओ, हो सकता है कि जहाँ से आपने रेफर किए कुछ क्वेश्चन उनमें मैच करेंगे, एट द एंड सब वही स्टैंडर्ड बुक से उठाते हैं, ठीक है। सो यस सर। शॉर्ट नोट्स भी नहीं है, बस एक बार किया है, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट नोट नहीं है तो जहाँ से किया वहाँ पे कुछ तो टिक किया होगा आपने, या उसी से आप जो है फॉर्मूले टाइप की चीजें देख के आओ, फिर क्वेश्चन तो हम सोल्व करेंगे इसमें, राइट। बीनू, तो ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। उसके बाद जैसे अपन जो भी एक क्लास होगी उसमें ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज दो। उसके बाद भी आपको किसी क्वेश्चन में इश्यू आता है, मतलब टेस्ट सीरीज दोगे उससे पहले आप PYQ भी करोगे, राइट। मतलब जैसे अपन ने क्रैश कोर्स किया, आप शॉर्ट नोट्स रेफर आए, फिर क्रैश कोर्स में जो भी क्वेश्चन हुए वो करे, उसके बाद आप PYQ देखो उस टॉपिक के। या मान लो टेस्ट पहले आ रहा तो टेस्ट पहले दे दो, इसमें कोई वो नहीं है, पर PYQ भी साथ के साथ करते रहो। टेस्ट पहले दे दिया, बाद में PYQ कर लिया, मतलब जैसा भी आपका ऑर्डर बन पाए। उसके बाद जिन पे आपको इश्यू आ रहा है, जिन क्वेश्चन पे, वो फिर आप अपने जो भी एक्सटेंडेड नोट्स है उनसे रेफर करो, उन पे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। वैसे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं उसमें भी दूंगा PDF में, तो वो कर लो आप। कुछ डाउट रहेंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, या वो जो अपना ग्रुप है ये उसमें आप ये कभी भी डाउट करो, दैट विल बी सॉल्व।
तो ये प्रोसेस यूज करो। और शिवम आप कोशिश करो कि साथ के साथ ही करते रहो, मतलब इस बार नहीं तो अगली बार, आप शायद अगली बार दे रहे हो शिवम, राइट? तो आप क्या करो कि जैसे क्लास होती है उसके साथ ही चीजें करते जाओ, ठीक है? नहीं, शेड्यूल चेंज नहीं हुआ, शेड्यूल तो वही है, बस वो ऑर्डर अपन वैसा करेंगे ताकि टेस्ट सीरीज दे पाओ आप, ठीक है? सो आप साथ में ही क्लास करते जाओ, उसी से बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर कोई भी चीज अपन पेंडिंग रख देते ना तो वो बहुत फाइट है उसको करने में फिर, मतलब वो हर मतलब ह्यूमन नेचर है वो, तो वो साथ में चीजें करो, तो ये प्रोसेस रहेगा, ठीक है? उत्कर्ष, शिवम, बीनू। यस सर, थैंक यू। सर पिछले बार का हाईएस्ट कितना गया था? पिछली बार का हाईएस्ट आई थिंक 336 था, 336, देन 332, देन 328। ये टेस्ट सीरीज में थे, सोम, देन दीपांशु, आई थिंक हाईएस्ट गया था आयुष, वो उसमें था, मॉक्स में था वो, मतलब लास्ट के 2 टेस्ट दिए थे उसने, तो है पर वहां पे उसने एरर की थी, वहां पे अच्छा किया उसने एग्जाम, ठीक है? So one more doubt. So I noticed one thing. I think it was the year 2022's PYQ for vector, I guess, in which there was this error. There was this printing mistake in one of the questions. हाँ, actually only in the last year paper there was no mistake, otherwise in 2022 there was a printing mistake, 2021 there was a printing mistake, right? Regularly था वो, तो पर you So, assume नहीं है। but the question that I noticed, it was a proof problem, not something else. So if it is asked for a proof, like if the LHS, if it is given wrong, then how do we know which is right, which is wrong? So we are bound to make mistake, right? We will never get it right. ना, you just fix your time frame, like कि you will invest that much time on that question, right? Okay. And don't waste much time. You always assume that the full paper is correct. ये ऐसा नहीं मानना है कुछ गड़बड़ है, right? Just आप एक time cap रखो that you don't give more time than that cap की, because otherwise you will your paper won't be completed, right? So that thing you keep in mind. Generally, hopefully, that must be there, that if some question is misprinted, then they must be giving marks to the person who have attempted that question. But Okay, no sir. one knows. UPSC is very opaque body, but still that seems rational, right? Okay, sir. Good. सर एक डाउट था मेरे को। हाँ, सर मेरे को एक्चुअल में राइटिंग स्टाइल को लेके एक डाउट था मैं इसमें, कि एक्चुअल में जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कोई भी, जब हम अगर अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं PYQ वगैरह, तो हम बेसिकली मेन उसको बहुत ही रफ वे में सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसको बस किसी तरीके से क्या मतलब प्रूफ है तो प्रूफ हो जा रहा है, या फिर उसका मेन लॉजिक को ध्यान में रखते हुए बहुत ही रफ वे में कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक्चुअल में जब टेस्ट देने जा रहे होते हैं तो फिर उस समय फिर बहुत डाउट आता है कि ये स्टेप लिखें नहीं लिखें, इस स्टेप को मतलब स्किप कर दें, या फिर इसको मतलब बहुत सारी कहीं पर हमने थ्योरम यूज करी है तो उसको मेंशन करना है नहीं करना, या फिर ये ऑब्वियस ही है इसको स्किप कर सकते हैं, तो फिर उसके लिए नहीं, देखो आप क्या, ये चीज मैं बताता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, मतलब आप बहुत अच्छा, मतलब अच्छा अटेम्प्ट कराओ, लेट्स से कि पेपर 1 में 2 to 5 अटेम्प्ट किया, इंस्टिल यू गेट 151, तो उसका रीजन एक ही है कि आपने प्रॉपर स्टेप नहीं लिखी, ठीक है ना? तो वो उसके लिए आप क्या करो कि मतलब वो हैबिट में डालो, देखो वो उस डे पे नहीं आएगी अपने आप। व्हाट यू डू दैट you make sure that even in practice, when you practice at home, you write the steps, note that verbose things, right? Just like we know that now this, and if you are using some theorem, just quote that theorem. Let's say that there is this equation of Cauchy-Euler where we put x equals to e power z, so mention that by this is of the Cauchy-Euler form, so let x equals to e power z, and then this will convert to this where d1 is d over dz. And if you are using some fact, then mention that fact. But if theorem is used, just mention the name. No need to write that statement. And let's say कि in particular integral question you are doing sin ax particular integral is involved, then write that formula, right? So these things matter in fact. That 151 to 170 score, that difference will make 20 marks का difference these steps will make. Because let's say कि we have how many questions we attempt? 10, and 3 into 3, 9, 19 question will attempt, right? If we count the parts. So even if we lose 1 mark in each question, there are 38 marks.
So at average, we can assume that 30 marks will be lost if you don't write proper steps. ठीक है? So all these things matter. Sir, what? sir. हाँ, कोई भी एक बोलो पहले. No, you can. हाँ ठीक है बोलो. Sir, for max, do you know what would be the scaling factor these days? I think it is higher. I mean, recently. Actually, don't think in that direction. Generally, it's 0.7 in paper 1 and 0.8 in paper 2 in general. But they depend on the level of the paper actually. If paper is tough, then the scaling will improve your marks. If paper is easier, like in 2018, if you see paper 1, it's very easy. You can, if you have done a serious study, you don't have to select questions. You can sequentially do all the questions. So that year, I think it was 0.65 or something. So if paper is tough, then in general scaling is 0.7 to 0.8. Okay, sir. Paper 2 in general is of good level. And Okay, you will basically in general in paper 2 it's very tough to complete the paper. In paper 1 you can complete even 20 minutes before if you have that command. In paper 1 just make sure that you don't commit error. Okay, sir. Yeah, in paper 2 you make sure that you complete the paper because their scaling is less. So if you correct attempt there 200, so 160 is guaranteed almost. You will get plus that only if you have written proper steps. But in paper 1 that's not that conversion is not there. The scaling is more here, like 0.7, sometimes 0.65 as well. Sir, and I have one more doubt. While doing a full test, I'm not talking about the module-based test, but the full test, the actual exam paper 1, paper 2. While attempting paper 1 and paper 2, I did talk to one of the toppers, and he told me that the selecting which question to answer out of the available lot, that itself is an art. So if you are able to select that particular question wisely, it will even boost your chance of scoring a better mark. हाँ एक मिनट यार यहाँ पे कुछ डिस्टेंस हो गया था. दोबारा बताओ क्या पूछ रहे थे आप? Sir, I did talk to one of the toppers I know. So हाँ. he told me that while attending paper 1 or paper 2, one of the main things which he found it important is that the art of selecting questions, like of the available options, if you are able to choose the questions that you are about to answer wisely, it will impact your potential score to a great extent. So, I mean, I want your input in that regard. Like, how do you select a particular question to answer? Okay. Of course, that will matter. But that will come from from your comfort level, right? Let's take paper 2. So in section A we have this modern algebra, and section B we have this physics part. So let's say you have good command over fluid and mechanics, then you should go. You should select that extra question from that section. And you have good command in modern, then you should select that question from there. But this thing will come through the practice only. There can be time when even modern question, let's say you have good command over physics portion, and modern is not that great for you, right? But there can be question in modern of that level that it's very easy. Let's say some structure is given and he has asked that so that this is the integral domain, right? So then you should attempt that question only, of course. There should not be any preconceived mindset that, okay, I won't attempt any question from modern and I will attempt each and every question from the fluid or let's say OD. But let's say there is some tough question from OD. There can be, right? So then you will waste your time. So don't go with the preconceived mindset. Of course, you be clear in your mind that I am more comfortable in the fluid part rather than the modern algebra part. So there are chances that question from that part I will be able to solve. So Sir, that thing. one more thing, how much time should we allocate for selecting the questions? In one of the videos of one of the toppers, I remember him telling that he used to allocate, 20 minutes for every paper for selecting the right questions to answer. Then the remaining part of the time, he would answer those questions which were selected earlier during that allotted time.
हाँ नहीं, वो आप कर सकते हो अपने हिसाब से। ये जो आप चीज बोल रहे हो ना, यू जस्ट ट्राई दिस इन द टेस्ट सीरीज, right? Okay, sir. Let's say paper 1 or 2, whatever paper suits for you. Just try these combination, these tests, and see where you are optimizing your scores, Okay, right? sir. So all these experiment you do here. Then what combination fits you most, you go with that in the examination. Okay, sir. Okay. हेलो सर। हाँ जी। मेरे कुछ डाउट्स थे। हाँ एक तो सर शुरू के जो टॉपिक्स थे उनमें नोट्स बनाए थे, मतलब शॉर्ट नोट्स, मतलब फर्स्ट 5-6 टॉपिक्स तक। उसके बाद फिर शॉर्ट नोट्स बनाने का टाइम इतना एलोकेट नहीं कर पाया। तो अभी इसके साथ में रिवीजन के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए अभी, या कैसे? क्योंकि एक बार और शायद रिवीजन का टाइम तो मिलेगा, आई थिंक एक रिवीजन हाँ और, यार, तो अगर उसके आप लिए कर पाओ, मतलब लेट्स से कि आप देखो अगर टाइम ज्यादा जा रहा है आपका तो मतलब, पर आप कर पाओ, अगर लेट्स से कि आप बना पाओ तो बना लो, अदरवाइज आप एटलीस्ट टिक तो कर दो, क्योंकि वो सर 5 days वो में नहीं कर पाओगे पूरे नोट्स। नहीं सर, रिवाइज तो पूरा नोट्स नहीं सर, जैसे पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए जो जो पीवाईक्यू थीम्स हैं हाँ एटलीस्ट हाँ, वो मैं शॉर्ट नोट्स में ऐड करता जाऊँ, क्योंकि मैं साथ साथ में क्लास में साथ में पूरे नोट्स बनाता था खुद के, आपके अच्छा नोट्स के अच्छा। अलावा। तो वो नोट्स तो हैं ही, वो टैबलेट में है तो वो कॉपी पेस्ट हो जाएंगे इजीली अगर मैं हाँ तो सेलेक्ट करके कर लो वो साथ में, क्योंकि और जब 5 days होंगे ना तब वो काम आएंगे। ओके सर। अच्छा सर, एक और चीज़ थी कि ये जो आप जो ये जो हमारा क्रैश कोर्स जो है, हाँ वो हाँ क्रैश कोर्स में सर मैंने ज्वाइन तो नहीं किया अभी। मैं सोच रहा हूँ सर एक रिजल्ट आ जाए उसके बाद ज्वाइन करूँ अगर मतलब, तो ठीक है। तब तक जो है वो फर्स्ट में क्या चल रहा है, फर्स्ट में सर आप रियल और वो स्टार्ट करें तो मैं वो अपने हिसाब से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि साथ साथ रहेगा। तो इसमें जो टेस्ट सीरीज के हिसाब से वो शेड्यूल है उसका, है ना? हाँ एक्चुअली टेस्ट सीरीज के हिसाब से वो शेड्यूल बना रहा हूँ। मैंने पहले उसका ओडीपीडी का सोचा था, पर फिर वो टेस्ट नहीं दे पाओगे आप, इसलिए पहले रियल कैलकुलस करना पड़ेगा उसमें, तब सेकंड टेस्ट दे सकते हैं। ओके सर, तो रियल सो और सर एक वो और चीज़, हाँ तो रियल कैलकुलस से स्टार्ट कर देता हूँ मैं उसको, जो भी मेरा साथ में। हाँ हाँ, और सर एक चीज़ और थी सर, जो आप जो सर आप जैसे 3 घंटे एक की बार आप मेरे को मैसेज कर देना डीएम में, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आपको उसका, ठीक है? हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हो? सर जो टेस्ट सीरीज जो आप क्रैश कोर्स में जो 3 घंटे क्लास हो रही है, उस हाँ क्लास में सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशंस हो रहा है, या मतलब किस तरह से वो टाइम पीरियड में क्या चलेगा? यानी कि आप क्वेश्चन सॉल्व सिर्फ करेंगे या क्वेश्चन होंगे, हमसे सॉल्व कर? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिर्फ, उसमें थ्योरी वगैरह ऐसा नहीं होगी। कोई क्वेश्चन में आ गई कुछ थ्योरी तो मैंने एज ए पासिंग रेफरेंस बता दिया उसको, राइट? पर जनरली ओके इस पे क्वेश्चंस होंगे और वो भी पीवाई की थीम से होंगे। सर, जैसे आप पहले क्वेश्चन दे देंगे, हम सॉल्व करके आएंगे, फिर नेक्स्ट डे डिस्कस होगा, इस तरह से चलेगा, या फिर आप वहीं पे डायरेक्ट फर्स्ट में क्वेश्चन क्वेश्चन देंगे? दे दूंगा मैं भले, पर क्वेश्चन करेंगे हम वहाँ पे सोल्व। क्वेश्चन की तो ओके मतलब वो अराउंड 450 क्वेश्चंस है। ओके ओके वो ओके क्वेश्चन मतलब उनमें से लेट्स से कि 10 क्वेश्चंस है, लेट्स से देयर आर दीज 2 टॉपिक्स, उन पे 10 क्वेश्चन है लेट्स से कि सब टॉपिक्स पे, और उनमें से लेट्स से कि 5 डिस्टिंक्ट टाइप के हैं और 5 फिर उनसे हो सकते हैं, तो दोज 5 क्वेश्चन आई विल डिस्कस। ओके सर। वो प्रोसेस रहेगा उसमें, और जनरली वो पीवाई की थीम्स पे अपना फोकस रहेगा। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। और किसी का कुछ कंसर्न? ठीक है, आई थिंक फिर ठीक है। किसी को और भी कुछ भी इश्यू रहे तो अपन ने, जैसे क्रैश कोर्स का भी ग्रुप है, मतलब जो भी मेंबर्स इसमें ऐड हुए हैं आई थिंक सब किसी ना किसी ग्रुप का पार्ट है। तो किसी भी ग्रुप पे जिसके आप पार्ट हो उस पर आप डाउट पुट करोगे तो दैट विल बी एड्रेस्ड, राइट? और अभी आप कोशिश करोगे, ये अगर फुल टाइम तैयारी कर रहे हो तो आप एटलीस्ट 12 आवर्स तो पढ़ो अभी, क्योंकि ये टाइम पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 3 मंथ आप जो पढ़ोगे ना, दैट हैव वेरी क्रूशियल इफेक्ट इन फैक्ट, क्योंकि मेमोरी में यही चीजें रहेगी अभी। ठीक है ना? Okay, sir. चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, Sir, do one more class, sir, after 1 month. हाँ ठीक है, मेरे को बताना, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, Thank you, चलो sir. ओके।